नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आज के इस वक्त में हम विशेष रूप से जो बात करने वाले हैं वो तमिलनाडु की राजनीति पर। हमारे जो दो सहयोगी वहां पर गए हुए हैं उनसे तो हम तमिलनाडु की राजनीति का जायजा ले ही रहे हैं। आज तमिलनाडु में बात करेंगे कि जो आर पार की वहां पर राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है दोनों पक्ष, एक तरफ डीएमके की अगुवाई में, दूसरी तरफ एआईएडीएमके एनडीए, उसमें अब बात क्या हो रही है कि बात अब जुबानी जंग तक भी पहुंच गई है और निजी हमले भी हो रहे हैं एक दूसरे पर। लेकिन इन सब के बीच तमिलनाडु की जनता क्या कह रही है, तमिलनाडु की जनता के मन में क्या है, इसकी भी जमीनी पड़ताल करेंगे। और आज जो हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वो पश्चिम बंगाल में भवानीपुर जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट है। क्यों? क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ती हैं और शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने नंदीग्राम में पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था, वो इस बार दोनों सीट से लड़ रहे हैं, नंदीग्राम से भी और भवानीपुर से भी। भवानीपुर वही सीट है जहां नंदीपुर में हारने के बाद ममता बनर्जी ने उपचुनाव जीता था। लेकिन इस बीच में भवानीपुर में बहुत कुछ हुआ है। भवानीपुर के जो आंकड़े हैं वो बहुत कुछ कहते हैं और शुभेंदु अधिकारी का यहां आकर ममता बनर्जी के घर में, ममता बनर्जी का घर भी इसी विधानसभा सीट में पड़ता है, उनको चुनौती देना यह अपने आप में बहुत संकेत देता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। और याद कीजिए, जब कुछ दिन पहले, आज तो ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल किया था, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर मौजूद थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था भवानीपुर की जनता से कि अलग अलग जगहों से सीटें हम लाएंगे, वो एक अलग बात होगी, आप ये वाली सीट हमें दीजिए तो सरकार बदल जाएगी, मुख्यमंत्री बदल जाएंगी। यानी कि भवानीपुर की जनता जो है वो एक बड़ा फैसला लेने वाली है। और क्या ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी कोई चुनौती पेश कर सकते हैं, कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, ये सारी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय सीधे अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में चलते हैं। Good afternoon, everyone. As we know that in this current geopolitical situation, coal sector carries a greater responsibility and stands fully prepared to meet any consumer needs backed by the robust railway support, and sufficient stocks are available at the mine as well as power plants. So what we have done around the year that we have adopted a proactive approach. With the proactive planning and timely actions taken by the coal sector, adequate coal stocks have been built at the power plant, even well before signs of the evolving West Asia conflicts. And we have ensured energy security in the country, insulating the country from the potential disruptions. And we know, everybody knows that we account for almost 70% of the power requirement of the country through the coal-based generation. And we have ensured affordable power to households, industries, and the critical infrastructure. So what we have done, we have taken a series of coordinated efforts. We have guided our coal companies to ensure adequate supplies. And throughout the year, we have been taking a lot of actions. With these actions, we produced around 1 billion ton of coal for second time in a row. Last year also we produced 1 billion ton of coal. This year also we produced 1 billion ton of coal on 20th March 2026. The action that we took basically is a affordability focused approach. And we combined the increased availability of coal along with the strong coordination with Ministry of Power. Then we have railways also with us. We have also coordinated with the state governments to ensure easy mining there and prevent shortage across the country. And what happened in this process to ensure affordability, when I said it's affordability focused approach, Coal India Limited and Singareni Coal Company, which are the national coal companies, took a decision proactively to absorb the higher cost of explosives. What happened? The explosive cost prices have gone up, and also the diesel prices also gone up. They have not increased the prices of the coal. We have ensured the affordability without passing on these costs to the consumers and recovering none of them from them. See, we know the ammonium nitrate is a key raw material that is used for blasting and mining operations. It has witnessed a sharp price increase. If you see of the numbers, the ammonium nitrate price has risen from almost 50,000 rupees per ton since March to 72,000 ton per of this ammonium nitrate. And this is an increase of almost 43%. Consequently, the price of the explosive also increased by 26%. That is almost to 49,000 from the earlier 40,000. And what happened, even after that, the price was high on the input side, we didn't increase anything.
Over and above what Coal India did in the e-auction processes, they didn't increase the reserve price. Rather, they decreased the reserve price by a certain extent so that the affordability is still maintained. To further strengthen the government efforts, like government decided to support alternate fuels like kerosene and coal. So when coal was used by the small consumers like medium, small people, then what has to be done? We gave directions to the coal companies that they have to allocate higher quantities of coal to the state governments and also increase the quantity of coal in the e-auctions so that everybody is at ease and the supply chain is maintained uninterruptedly. So this has resulted into an optimized coal supply mechanism for the small, medium, and other consumers. See, what happens as of now, coal is supplied to the small consumers through two mechanisms. Number one is the state-nominated agencies, which basically raise their annual requirements to the coal companies, we allocate them, and also they take this coal through the e-auctions mechanism. So these two mechanisms actually optimize the entire chain for the coal supply. What I said to you that the e-auction frequency will increase. Normally in a month, the auctions done by the Coal India under the e-auction category, maybe say 15 to 20. We have been doing now almost 30 auctions, so almost like one auction per day was done to ensure availability of the coal. In the month of March, if I look at the numbers, we have offered around 32.53 million ton of coal, and amount that was offered, we could only see customers booking 13.32. So booking was only 40.94%, indicating there was a sufficient coal offered and a quantity available was adequate. In the month of April also, Coal India has planned 30 auctions, again almost one auction per day. And till date, we have done few auctions. We have offered quantity of around 3.2 million tons. And again, the booking has been the same zone. The booking is around 38.75%. So we are seeing almost like 40% coal gets booked every time under the e-auction. We also took the step to check the price rise because there have been cases reported to us, there has been price rise or maybe some cases of holding the coal. We wrote to the state governments, we requested for the demands of the coal at their end, and also we alerted them to take care of any profiteering instances in the state governments and ensure fair distribution. And what happened for the state governments, we ensured monitoring also whether despite the situation we are offering coal, whether the offtake is there or not. So the coal companies are monitoring this on daily basis. We have seen there is a progress, the monitoring is there, the coal offtake is there. But at the same time, the amount of coal that we offered, like it happened in the case of e-auctions, here also offtake is around 15% only. Last year, that is year 25-26, we had offered around 1.258 million ton. The offtake is around 0.179, which is again 14%. And for the year 25-26, the coal allocation is supposed to lapse by 31st March. But we took again a proactive step. We have permitted them to offtake this coal by another 90 days so that they can now offtake this coal for up to June 26. For the second year coming 26-27, we have offered another 1.5 million ton. So that also they can offtake. So we have ensured adequate amount of coal for state nodal agencies also. Totality, what we have done, we ensured basically a focused approach on the buffer across the coal supply chain. As of now, if we see, we have sufficient coal stocks available in the country at mines, power plants, ports and transit, which can be made available to the consumers at a very short notice. We have Indian Railways with us for helping in this transportation. The coal stock as of now at the power plant is around 55 million tons as of yesterday, which is adequate for 24 days of uninterrupted power generation based on the average consumption of last 7 days. So we have absolutely no deficit on the power generation side. Further, if we see the stock is there, people think that there is a coal only lasting for 24 days. That is not the case. It will last for 24 only days when coal supply is totally stopped. There is no deficit on daily basis. We are producing coal at the pace matching with the consumption levels. There is no deficit as of on daily basis. And this support is always there for offtake by the Indian Railways. In addition to the stocks at the power plants, we also have stock at mine end. The Coal India mines, the captive mines, Singareni mines, this is almost like
170 million tons. So totality, we have almost 220 million tons of coal available in the country, and there is a continuous mining. There is absolutely no shortage of coal. So in nutshell, with the strong support of railways and comfortable coal stock at the mines, the thermal power plants in the coal sector are fully equipped to meet the nation's energy needs. Thank you. Thank you, Sanjeev ji. Over to Sujata now for Petroleum Ministry updates. नमस्कार। देश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और नॉर्मल सप्लाई हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉर के चलते एलपीजी सप्लाईज अफेक्ट हुई थी, जिसके चलते घरेलू उपभोक्ताओं को प्रायोरिटाइज किया गया और घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सप्लाई इंश्योर करने के लिए कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को रेगुलेट किया गया। परंतु जब यह किया गया तो उसके साथ एडिशनल ऑप्शंस भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए गए, जैसे कोल और कैरोसिन। इसके साथ साथ जो पीएनजी कनेक्शंस हैं उसको भी एक्सपैंड करने की कोशिश की गई और इसके साथ ही कैलिब्रेटेड मैनर में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को भी इंक्रीज किया गया। घरेलू एलपीजी की सप्लाई नॉर्मल है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है, कहीं कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 95% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और लगभग 91% रिफिल की डिलीवरी डीएसी कोड के साथ हो रही है और ये 91% जो फिगर है वो ये इंश्योर करता है कि डाइवर्जन न हो। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 12 मार्च से पहले कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को बंद किया गया था, लेकिन 12 मार्च को 20% सप्लाई को स्टार्ट किया गया और इसमें हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज किया गया। उसके बाद 18 मार्च को 10% एडिशनल एलपीजी एलोकेशन की बात कही गई उन स्टेट्स के लिए जो पीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन में सहयोग करें। इसके अलावा 21 मार्च को भारत सरकार ने और 20% कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को इंक्रीज किया और इस बार प्रायोरिटी थी ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल्स, कैंटीन एंड आउटलेट्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, कम्युनिटी किचन्स और 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर। फिर 27 मार्च को भारत सरकार ने एक और इंक्रीज किया 20% का और इस बार प्रायोरिटी थी स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल्स एंड प्लास्टिक और ऐसे उद्योग जहां पर जो लेबर इंटेंसिव है और या जहां पर लेबर जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा काम करती है। फिर 6/4 को भारत सरकार ने एक ऑर्डर और इशू किया और उसमें जो 5 किलो के सिलेंडर्स हैं उसकी सप्लाई को डबल करने की बात की गई। 8/4 को भारत सरकार ने अब एक और ऑर्डर इशू किया है जिसके अंतर्गत फार्मा, फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, हेवी वाटर, स्टील, सीड, मेटल, सिरेमिक्स, फाउंड्री, फॉर्जिंग, ग्लास, एरोसॉल, इन सभी इंडस्ट्रीज को 70% तक इनका मार्च से पहले जो भी इनका कंजम्पशन था उसको देने की बात की गई है विद ओवरऑल सेक्टोरल लिमिट ऑफ 200 टन पर डे। इस सभी के चलते लगभग 93,000 टन कमर्शियल एलपीजी सेल हुई है 14 मार्च से और कल भी लगभग 6,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। 5 किलो के सिलेंडर के संबंध में जैसा कि मैंने अभी बताया कि 21 मार्च को 5 किलो का सिलेंडर माइग्रेंट लेबर के लिए प्रायोरिटाइज किया गया। उसके बाद उसकी डिलीवरी को सुगम करने के प्रयत्न किए गए और इसके साथ ही जो 5 किलो का सिलेंडर है बिना एक आईडी प्रूफ के साथ मिलने की व्यवस्था की गई
और उसके लिए कोई एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी सुनिश्चित किया गया। इसी सब के चलते पिछले 5 दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 1600 अवेयरनेस कैंप किए हैं और लगभग 14,000 सिलेंडर इन कैंप्स में सेल भी किए हैं। कल एक दिन 1,10,000 से भी अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है और 23 मार्च से अब तक लगभग 8,90,000 5 किलो के सिलेंडर बेचे गए हैं। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि घरेलू उपभोक्ता को प्रायोरिटाइज किया गया, उसको प्रोटेक्ट किया गया। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज को भी नेचुरल गैस की सप्लाई स्टार्ट की गई और फर्टिलाइजर प्लांट्स को, जिनको कल मैंने बताया 90%, अब उनकी सप्लाई 95% पर इंश्योर की जा रही है। इसी तरह ड्राफ्ट स्टेट सीबीजी पॉलिसी निकाली गई और जो भी स्टेट्स इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे उनको एडिशनल कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन में प्रायोरिटाइज करने की बात कही गई है। पीएनजी कनेक्शंस के संबंध में भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज को लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपने यहाँ पर इस तरह के रिफॉर्म लेकर आएँ ताकि पीएनजी कनेक्शन को देना सुगम और आसान हो जाए। इसी के चलते लगभग 18 स्टेट्स ने ऐसे कदम उठाए हैं और जिसके चलते उनको एडिशनल एलपीजी का एलोकेशन किया गया है। मार्च 2026 से अभी तक लगभग 3,87,000 पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं और लगभग 4,21,000 नए कंज्यूमर भी रजिस्टर हुए हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक लेटर जारी किया और उसमें ये कहा गया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन है, वो अपना एलपीजी का कनेक्शन सरेंडर करें और इसके चलते कल तक 17,000 से ज़्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स ने अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया, सामान्य है, कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर, मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज भी सफिशिएंट हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत और जिसमें सभी रिफाइनरीज को ये आदेश दिया गया कि C3 और C4 मॉलिक्यूल्स को एलपीजी पूल के अंदर ट्रांसफ़र करें ताकि घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाए। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आने के बाद भारत सरकार ने एक और ऑर्डर इशू किया ताकि पेट्रोकेमिकल से संबंधित ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 800 टन पर डे का एलोकेशन पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनीज के लिए, मंत्रालयों के लिए किया गया है। एनफोर्समेंट के बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकारों के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं और कहीं पर भी, जहाँ पर भी कोई भी माल प्रैक्टिस उनके ध्यान में आ रही है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। कल लगभग 4,000 रेड हुई और 1,000 से ज़्यादा सिलेंडर सीज हुए। पिछले कुछ दिनों में 56,000 से ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर सीज किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी 1770 शो कॉज नोटिस दिए हैं, 175 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टीज लगाई हैं और 51 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि वॉर के चलते सप्लाई प्रभावित हुई भी हैं अभी भी, परंतु घरेलू उपभोक्ताओं की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का सरकार प्रयत्न कर रही है और उपलब्ध कराया भी है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ईंधन क्रय करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Now we'll take updates from Shipping Ministry. Good afternoon.
Ministry of Port, Shipping and Waterways, in coordination with Ministry of External Affairs and our missions in Gulf region, monitoring the emerging situation in the Persian Gulf region. The ministry, in coordination with ship owners, RPSL, agencies, Indian missions, is actively monitoring the situation. The DG Shipping Control Room has handled around 5,480 calls and 11,700 emails since its activation. In the last 24 hours, 139 calls and 673 emails have been received. The ministry has facilitated the safe repatriation of over 754 Indian seafarers so far, including 63 in the last 24 hours from various regional locations across the Gulf. Port operations across India remains normal with no congestion reported. The ministry continues to coordinate with other maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. Thank you. Thank you. Now we take updates from Randeep ji, MEA. Thank you, ma'am. The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in West Asia. We have issued a statement on the recent development in West Asia, and I would like to read it out for your benefit. While it is available on our website and on our social media handles, yet again I would like to read it out for you. We welcome the ceasefire reached and hope that it will lead to a lasting peace in West Asia. As we have continuously advocated earlier, de-escalation, dialogue and diplomacy are essential to bring an early end to the ongoing conflict. The conflict has already caused immense suffering to people and disrupted global energy supply and trade networks. We expect that unimpeded freedom of navigation and global flow of commerce would prevail through the Strait of Hormuz. In addition, I would also like to add, India has always been in favor of peace. We welcome all steps that lead to peace and stability. We hope that this development in West Asia will also encourage peace efforts in Ukraine. भारत हमेशा से ही शांति के पक्ष में रहा है। हम शांति के हर पहल का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि पश्चिम एशिया की यह पहल यूक्रेन में भी शांति बहाल करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। As we have said earlier, ensuring the safety, security and welfare of the large Indian community in the region, in the West Asian region, remains our highest priority. To support Indian nationals and their families, a special control room has been set up in MEA, which functions continuously. We continue to be in regular touch with state governments and union territories and liaise on issues and coordinate on issues as and when required. Our missions and posts also are working continuously through the round-the-clock helplines, and they remain actively engaged with community organizations, businesses in the Gulf region, people who may need any support, and are providing them as and when required. They're also issuing regular advisories to keep Indian nationals updated with latest information. They are proactively addressing issues and concerns being raised by our nationals, including facilitation of visas, consular services, facilitating transit through neighboring countries where there are airspace restrictions, and providing logistical support where required. Just to give you a short update on the status of flights, flights continue to operate from the region to India from countries where airspace is open. Since February 28th, around 7,88,000 passengers have traveled from the region to India. Due to flight restrictions and airspace closure in Israel, Iraq, Kuwait and Bahrain, we continue to facilitate movement of Indian nationals from Iran through Armenia and Azerbaijan to India, from Israel through Jordan and Egypt to India, from Iraq through Jordan and Saudi Arabia to India, and from Kuwait and Bahrain through Saudi Arabia to India. Just to give you an update on Iran,
Our embassy has issued a fresh advisory, which you would have seen. This advisory was issued today itself. Through this advisory, we are urging Indian nationals who are there in Iran to expeditiously exit the country in coordination with the embassy and as per the route advised by our embassy. We are given to understand that we have around 7,500 Indian nationals who continue to remain in Iran, and therefore this particular advisory was issued for them to take advantage of the present situation. As of yesterday, our embassy facilitated 1,864 Indian nationals to exit Iran through the land border with Armenia and Azerbaijan. This includes 935 Indian students and 472 Indian fishermen. This is all that I have to give you an update on. Thank you very much. Thank you, Randeep. Now we'll take questions row-wise. First row, 54, 16, 24, 22, and 130. My question is for Sanjeev, sir. Sir, what is the estimated demand of coal for the power plants this fiscal versus the last fiscal? Also, what is the average number of railway rakes that we will need on a daily basis to meet summer season power demand? And what has the railways told us on meeting that infrastructure demand? Thank you. So I just respond to all of your questions. The coal that is demanded for the next year is almost 906 million tons. And whereas last year, power sector has consumed 813 million tons. So they have consumed 813 as a growth of almost like 10% they are expecting this year. And regarding the railway rakes, we require around 480 rakes per day for the power sector and almost 20% extra for the NRS sector. So for power sector, we can say we require almost 480 rakes, and that railway has been giving us for last year also. And we have been speaking to railways. They have been strongly supporting us in transferring the coal for the power consumers. So absolutely, as of now, we see no constraints in taking the coal from the mines to the power sector. No, 906 million ton was requested by power sector last year also, but since the renewable energy space has contributed more, so the coal-based demand generation has been reduced. It's not that electricity was in short supply. It was adequately met, but it was compensated by the RE part. So coal-based generation was a bit subdued, and accordingly there was the coal consumption. But this year they have again sought for 906 million tons of coal. So we have all the arrangements in place. We have, I said in my earlier statement, that we have at present 130 million tons of coal at the mines. We have some more at the, in fact, transit. And also we will be producing the coal at the rate which is required. Normally the power sector consumes around 2.4 million tons per day. And we have improved that transport level up to 2.55 million tons per day. So we are in position to transport the coal and also in position to produce the coal. Second row, there was any other questions, please. Hi, thank you. Amar Jati from PTI. My first question is to Mukesh sir. Given the ceasefire that has been announced today, what's your assessment? When do the shipping movements start from Strait of Hormuz, particularly the Indian flagged as well as the foreign flagged vessels carrying Indian crew? And do you have an assessment when can we start sending back our ships again for fetching us energy supplies? My second question is to Sujata ma'am. You mentioned about 800 tons of molecules so what are the molecules that are being allocated for petrochemicals? Is it propylene or propane that are being allocated? And what is the impact that it will have on LPG production once you divert that supplies? Thank you. 130 and 24 after that. Hi, Sukal from the Indian Express. I just had a couple of questions for Sujata ma'am. Ma'am, you mentioned that now 800 tons per day of LPG is being provided for petrochemical production. Could you give us the data on what was the pre-West Asia war consumption level comparative, so that we can get an understanding as to how much of that have we received? The other question is linked to what Amar sir just asked.
Considering that LPG supplies have been hit, I mean, LPG is the most affected of all the energy-related commodities that are coming into India. Day by day, with the ministry passing orders of additional allocation for different industries of commercial LPG and LPG-related molecules, and with Naira Energy going in for a shutdown very soon, what is the government's assessment in terms of the impact it might have on domestic LPG availability? 24, 22 and 67 and what's yours? 26. हेलो मैम, लक्ष्मण CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल सुजाता शर्मा मैम से है। मैम, चूँकि हर हफ्ते हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग LPG कमर्शियल LPG का एलोकेशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो कब ये सिचुएशन आएगा, चूँकि सीज फायर हो गया, असेसमेंट क्या, कब ये सिचुएशन आएगा जो हम लोग 100% कमर्शियल LPG का एलोकेशन कंसर्न इंडस्ट्री को कर देंगे? और एक सवाल संजीव कुमार सर से है कि आपने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट की प्राइसेस 43% बढ़ गए हैं, दूसरे प्रोडक्शन एलिमेंट के जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, रिजर्व प्राइस बढ़ाने की बजाय हम घटा रहे हैं, तो क्या कोल इंडिया नुकसान में कोयला बेच रही है या फिर कोल इंडिया को कंपनसेट करने का कोई मैकेनिज्म है? Hi, I'm Rajesh Roy from Bloomberg. Question is for Randhir sir. Pakistan has always been portrayed as a bad actor, a country that promotes terrorism, feeds terrorism. All of a sudden, we see in the West Asia crisis that it has emerged as a peacemaker, especially after helping US and Iran clinch the ceasefire. How does it reflect on the strategy of India and rest of the world to portray it as a bad actor? Is it a huge setback? 67 here, 67 and this. Hi, I'm Ratnajyoti. I represent S&P Global Platts. My question is to Sujata ma'am. What is the current level of refinery runs in terms of percentage? You have been saying that it is running at optimum level, and some of the refineries are operating at more than 100%. Now, on an average, what is the percentage of the refinery run at present? Thank you. I'm Gauri Dwivedi from NDTV. My question is to Randhir sir and Mukesh sir, which is that the Trump administration has announced that 20 vessels will be passed through the Strait of Hormuz immediately, and there will be some sort of patrolling that the American forces will do. Given the fact that a large number of Indian vessels are in that region, do we have any visibility on how many of them would be from India, and any roadmap as to when some of our stuck vessels will come? Okay, we'll take the next bunch. 45, 17, 266, 270, 271. I think we'll stop that, then we'll take another. थैंक यू। मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ से। रणधीर सर, मेरा सवाल आपसे है, इस सीज फायर में एक ऐसे देश का भी जिक्र है जो दुनिया भर में आतंक का सबसे बड़ा स्पॉन्सर रहा है, इसे भारत कैसे देखता है? Sir, my name is Prakash Pradashi. My question is to Sanjeev sir. You mentioned that we have sufficient availability of coal stock at thermal power plants. Are you also supplying sufficient coal to non-regulated sectors? And other question is to Sujata ma'am. You have stopped providing domestic LPG production data. So what is the current status? Domestic LPG production data. Okay. We'll take some answers first. Sujata, we begin with you. Yeah. When will be the situation normal? I mean, all of you know the situation is before us, and lot of, oil-related infrastructure has been hit. So, I mean, what we can say right now is that we are making all efforts to make our domestic consumption meet and to bring a comfort level for our citizens. पेटकेम के बारे में आपने पूछा कि सप्लाईज पेटकेम के लिए हम दे रहे हैं, घरेलू पर क्या असर होगा। तो जब मैं अपनी ब्रीफिंग आपसे शुरू की आपको बताना, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि हमारी सप्लाईज क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिडल ईस्ट से आती हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू आती हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे पर हुआ।
परंतु जितने भी एडिशनल कार्गोस की मतलब एफर्ट्स किए गए कि मैक्सिमम पॉसिबल कार्गोस को हम टाई अप करें, और उसी के चलते हमने ये इंश्योर किया कि हमारा जो घरेलू उपभोक्ता है उसको कम से कम तकलीफ हो, और जो हमारे किचन के अंदर जो ज़रूरतें हैं उसे हम पूरा कर पाएँ। इसके साथ ही एज आर सप्लाईज इम्प्रूव्ड, they started becoming comfortable. We also started releasing the commercial supplies in a calibrated manner. So जब हमने commercial supplies को increase किया है, तो वो increase करते वक्त घरेलू उपभोक्ता की ज़रूरतों को सुरक्षित रखते हुए ही किया गया है। पेटकेम के संबंध में देखिए, जो LPG पूल है, जो LPG है उस आप जानते हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन है। जब भारत सरकार ने LPG प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात की तो उसमें प्रोपिलीन और ब्यूटीन जैसे मॉलिक्यूल्स को भी डाइवर्ट करने की बात की LPG पूल के अंदर। तो अभी जो एलोकेशन है वो प्रोपिलीन का है। आपने मुझसे पूछा कि इससे पहले कितना यूज़ होता था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल बिकॉज रिफाइनरी के अंदर स्ट्रीम्स कॉन्टिन्यूस मूव करते हैं। अभी आज की तारीख में वी आर मेकिंग श्योर दैट सम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कमिंग टू द LPG पूल। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी डोमेस्टिक सप्लाईज आर प्रोटेक्टेड फॉर आवर हाउस होल्ड कंजम्पशन। थैंक यू। संजीव जी फ्रॉम कोल। Let me put on. So there were two questions for me. One was regarding the high ammonium nitrate price and the consumers that are rising in price, and we are not passing on to the consumers. Whether the hit is being taken by the coal companies, they are at loss or not. See, I should tell you the prices have risen, there is no doubt about it, but this is a service to the nation, and we are doing service to the nation because this is not a situation lasting for long. It may be like fading away in a while, maybe 2-3 months. So for that point, we will at least absorb as a service to the nation. Number two, you said whether we have sufficient coal for the other than power sector. I mentioned there is sufficient coal for the power sector. We have supplied to the requirement. There is absolutely no shortage throughout the year. For the non-regulated power sector, the sector that is cement, steel, all those people, see, if we see the numbers, the supplies have been like anything. They went tremendous in growth. And last year, in fact, last financial, we supplied 181 million tons to the non-regulated sector. This year, we have supplied 213 million tons, a growth of 17.2%. So the growth is there of almost 17 to 18%. So there is no shortage. In fact, we have not received any kind of request for more coal on this. And to further take care of this, what we have done, there is a NRS linkage policy. Under that, we have offered enough amount of linkages to these people. And also beyond going one step further, we have opened a open window called Coal Setu. So under that, we have provided a coal for linkage the sector, which we don't ask for any what kind of use they are making. It's an unrestricted use kind of linkage. So we are in fact growing surplus beyond power, beyond non-regulated sector. We are also going for open end use, and in fact we are also thinking of export after meeting our requirements. We have enough amount of coal in the country in terms of the reserves. We have 401 billion tons of coal reserves in the country, and we are expecting only at the rate of around 1 billion ton as of now, and we plan to grow up to 1.5 billion tons per annum. So we have enough coal, we have enough production rates and supplying at a higher rates. Thank you, Sanjeev ji. Now we'll go to Randhir ji. Thank you. First, Rajesh, coming to your question. See, I am here to express India's position on developments in West Asia. We've already conveyed to you that we welcome the ceasefire, as also it is our expectation that dialogue and diplomacy that we are emphasizing on will lead to an early return of peace in the region. As to the position of other countries, it is best left for them to speak about it. प्रदीप, आपका भी सवाल यही था, तो इसको मैं हिंदी में कहना चाहूँगा कि जहाँ तक भारत का पक्ष है, मैं यहाँ पर भारत का पक्ष रखने आया हूँ। इस मुद्दे पर पश्चिम एशिया में जो गतिविधि चल रही है उस पर हम लोगों ने जो वहाँ युद्ध विराम हुआ है उसका हम लोगों ने स्वागत किया है। मैंने ये भी कहा है कि हमेशा से हम शांति के पक्ष में रहे हैं, और हम लोग का ये मानना है कि
संवाद से, कूटनीति से वहाँ पर शांति का पहल बन सकता है। जहाँ तक और देशों का उनका पक्ष है, उनका पोजीशन है, ये बेहतर होगा कि इन सब चीज़ का खुलासा वो खुद करें। Gauri, to your question on ships, transit of ships, look, we are closely following the developments. We have been in touch with Iran and several other countries and stakeholders to ensure unimpeded transit of our ships. As a result of our efforts, we've had several of our ships which have crossed the Straits of Hormuz. In our statement today that we've issued, we have conveyed our expectation that unimpeded freedom of navigation and global flow of commerce would prevail through the Strait of Hormuz. So we continue to be, this is an evolving situation, and we remain in touch with all our partners, stakeholders and countries to serve our interest. Thank you, Randhir ji. Now we'll quickly take questions from the 5th row onwards. Yeah. So regarding refinery production, yes. So I have already said, when I said our refineries are running at optimum capacity, means that they are running at 100 and plus. So we have the refineries which are working at 110% also, 112% also. So I will again reiterate that our refineries are operating at optimum capacities. Somebody also asked me about the LPG production data. I have already said it is in the range of 46 to 47 TFT. Friends, I have a humble request to make. We have a cabinet briefing at 4. So we will quickly take one question each, starting from the 5th row, 250. He will add to the answers up finally. Okay. So I think the portion of that question has already been replied by Shri Randhir ji. So you asked two questions: when our ships are likely to come back, and then when we are sending back our ships. So again, I'll say that we are in coordination with MEA and our missions, as well as our owners of the ship. We are trying our level best to bring our ships as early as possible, as well as sending vessels again to bring the cargo from that region. Thank you. Thank you. Now we'll take questions 256, 270. We start with the 5th row and all the questions behind that. And please be brief and quick. Thank you for letting me ask a question. I'm Tuesh Mishra from Economic Times. It seems Iran is going to ask for a toll from any ships that pass through the Strait of Hormuz. So what is the Indian government's position on this? Yes. I'm Atul Mathur from the Times of India. My question is for Sujata ma'am. You have informed that 17,000 people have surrendered their LPG connections, but how many new applications have been received for LPG connections since the war broke out? And has the government issued any kind of instructions to OMCs to issue new connections? If yes, how many connections have been issued so far? 271, 194, 252, 128, 200, 243, 249, and 139. That will all we'll take today. Please. Yeah, this is Shilpa from the Economic Times. My question is for Sanjeev sir. So you mentioned enough coal in the country for NRS as well as power sectors. There is certain grades of coal that is being imported. Are we looking to ask them to blend more domestic coal wherever it is possible? And is the ministry writing to other ministries for the same? Yes, unke piche. Hi, I'm Abhimanyu Sharma from CNBC TV 18. I have two questions, one for Sujata ma'am, one for Randhir sir. Ma'am, if you may please answer the steps being taken to increase the production as well as use of compressed biogas to augment the supply of imported products. And to Randhir sir, to you, is there any truth in reports that any fees in yuan is being paid for passage of ships through the Strait of Hormuz? 194 and then 249 will be the last. Good afternoon. Saptaparna Ghosh from The Hindu. My question is to Sanjeev sir.
Sir, I wanted to ask about coal gasification. Syngas can actually help in producing base products that would be required for ammonia, that could be utilized for ammonia and urea production. So is the coal ministry considering, this paradigm to further help out the urea and the fertilizer situation? If you could please share some perspective on that. Yes, 249 last. Hi, good evening, sir. My name is Danish Anand. I'm from NTV Profit. My question is for Sanjeev, sir. So you mentioned that we have enough coal stock, which is there for continuous electricity generation for 24 days. But is the buffer margin thin, considering that we are just a few months away from the peak summer demand? Thank you. We'll start with Sujata answers. देखिए, जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वी डू टॉक अबाउट द क्लीन एनर्जी आल्सो, और जो कंप्रेस्ड बायोगैस है इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, और इसमें हमारे टारगेट भी हैं 2025-26 ऑनवर्ड्स 1%, 3%, 4% ब्लेंडिंग इन द पीएनजी। इसके संबंध में भारत सरकार ने एक सतत स्कीम भी है। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन स्कीम टिल 2047 भी एक स्कीम है जिसमें इंजेक्शन ऑफ सीबीजी इनटू द गैस पाइपलाइन हैज़ बीन एंश्योर्ड। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक लगभग 82,000 टन सीबीजी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने प्रोक्योर किया है, एज कम्पेयर टू 42,700 टन्स ड्यूरिंग ईयर 24-25। That's from my side. Thank you. Sanjeev ji. So I have good number of questions. One is regarding basically the crux of the question is reducing the import and substituting the domestic coal, the imported coal, domestic coal. Second question is regarding coal gasification, how it can help substituting the hydrocarbon projects. And the third question is regarding peak summer approaching, how we plan for that. So as far as blending is concerned or import substitution is concerned, I will answer like this. We import around 250 million tons of coal on annual basis for almost last 3-4 years. This has been remaining almost constant. Out of this, around 60 million tons coking coal and 40 million tons is the coal that is required for imported coal-based plant. They are essentially using because they are designed for that kind of use. Just like a diesel car cannot burn a petrol, petrol cannot burn diesel. So that is non-substitutable. So the substitutable space with us remains around 140 million tons or 150 million tons. So for that, what we are doing, we are impressing upon the steel industry also to substitute this coking coal with our domestic coking coal by stamp charging. We are also asking the steel industry to use more coal in the sponge iron sector. That is one. That is part two. And if you see the numbers, how we have progressed over the years, the coal that was used for blending in the power plant has reduced by almost 50%. Last year we used around 15.1 million tons of coal in blending for the power generation. And this year we burned only 7.3. It's almost half. And similarly for the imported coal-based plant, they produce less power from their machines because our country could find more domestic coal and the machines were available in abundance. So they also consumed less coal this year. The ICBs consumed around 39.2 million ton compared to 48.3 million tons. So that is again a substitution in an indirect way. We are not saying that ICB should consume the domestic coal, but the availability being more of domestic coal, we could produce more power from the domestic coal. So they are a multi-pronged strategy for reducing the imports is by a substitution and also by reducing the imports. The part two was question for regarding the coal gasification. See, coal gasification is essential from the point of view that we have almost like saturated in use of coal in power sector and NRS. So the next avenue available to us is coal gasification, where we produce gas to convert those gases to chemicals. In this case, we would be attempting first the fertilizer. The plant at Tajal Fertilizer is there already there. And I believe by FY27 December, that plant would be ready. So we would be proving the first sample of it. We'll producing coal, using coal for producing ammonia-based fertilizer. Then we are also having a big scheme to produce gas by a scheme which was approved in the year 2024 in January, where almost 8,500 crore funding was available to the projects.
This were under 2-3 categories. Government projects were there, say private projects were there, and the demonstration project was also there. So in summary, I can say we have basically given funds to 7 projects, for which groundbreaking has been done for 4 projects. So we are in fact much close to the gasification process, and these are all surface gasification. If I just recall the latest event which Honorable Minister had done Bhumi Pujan on last month only, and these 2 projects are by Greta Energy and New Era at Chandrapur, Maharashtra, which will be commissioning in the financial year 29 and 30. So once we crack this gasification process, we will be substituting good amount of things like chemicals. In fact, if we purify the gas further, we can burn them in the power plants also by blending this gas in the natural gas and putting our gas turbines to a great amount of use. Then the third question that I have for me is regarding the peak summer demand. See, peak summer demand is not a new thing for the country. The power sector gives us the coal demand projection for the entire year. It is a phase down in a manner of monthly supply basis, and for that we supply a plan to the Ministry of Power. So this year also they have asked for a coal requirement of 906 million tons. Month-wise requirement is given. We have also submitted a supply plan, in fact 2 days back only, because we received the requirement 15 days back. We worked out backwards supplying from the captive mine sector, the Singareni, our national coal company in Coal India. So the entire plan is in place, and we have enough buffers from the point of view. If we have 55 million, I told you, this is going to deplete to zero level only when there is supply deficit on daily basis. There is no deficit on daily basis. We are matching the supply to almost same level. If we see the last year numbers, we started the year with 55 million tons of coal, and we were not depleting below the levels of 35 million tons. So it is not that the peak summer demand comes, we are totally washed out. No, the plan is there in place, nothing to worry at all. Thank you. Thank you, Sanjeev ji, Randhir ji, and Mukesh ji. We have 2 questions, both similar, Abhimanyu and our friend from Economic Times. And just to say that I have answered this particular question in the past as well. We have had no discussion with Iran on this particular issue. So that is where it is. Thank you, friends. Thank you, officers on the dais. Thank you, everybody. Thank you. सीधा प्रसारण आप अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता का सुन रहे थे, जहां पर कि सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि पश्चिम एशिया में जो हालात हैं उससे भारत पर किस तरह का असर और भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। जैसा आप जानते हैं 15 दिनों का सीज फायर हो गया है, तो सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में और भारत चाहता है कि ये जो सीज फायर है ये आगे भी जारी रहे। और इसके बाद जो देश में हालात हैं तेल के, गैस के, कोयला आपूर्ति के, उसके बारे में जानकारी दी गई। और विशेष रूप से आज कोयला के बारे में कहा गया कि इसमें कोई कमी नहीं है, हर जगह पर इसकी आपूर्ति बिल्कुल जारी है। और साथ ही वो सारे डेटा दिए गए जो एलपीजी को लेकर, तेल को लेकर सरकार ने बताया कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह से किसी घबराहट की कोई बात नहीं। और तो अब तो जाहिर सी बात है कि स्थिति दिनों दिन सुधरेगी ही। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। इस वक्त में आगे बढ़ने से पहले इस समय की हेडलाइंस पर एक नजर। असम, केरलम, पुदुचेरी में चुनावी संग्राम के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी। कई अहम सीटों पर होगा दिग्गजों की किस्मत का फैसला। पहले चरण के लिए मतदान कल। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी ने दाखिल किया अपना पर्चा। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से टक्कर के साथ जंग हुई ये दिलचस्प। अभिषेक बनर्जी की धमकी पर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी।
तमिलनाडु चुनाव में आर पार की सियासत के बीच मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे और फ्रीबी की बौछार के बाद चुनावी प्रचार में व्यक्तिगत हमले का सिलसिला भी तेज। स्टालिन ईपीएस को नाकाबिल बता रहे हैं तो ईपीएस सीधे फैमिली फर्स्ट कहकर डीएमके पर कर रहे हैं प्रहार। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते तक सीज फायर की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपने सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर चुका है अमेरिका। और सीज फायर पर ईरानी विदेश मंत्री का दावा, हमले रुके तो नहीं होंगे जवाबी हमले। अगले 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुले रहने की घोषणा। यूरोप और एशिया समेत झूमे दुनिया भर के बाजार। और रिजर्व बैंक ने रेपो रेट समेत प्रमुख दरों में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई गवर्नर ने कहा भू राजनीतिक चुनौतियों के कारण वैश्विक ग्रोथ प्रभावित, लेकिन भारत की आर्थिक सेहत बेहद मजबूत। ये थे हेडलाइंस। और अब बात करेंगे आज इस वक्त में तमिलनाडु की राजनीति की कि तमिलनाडु में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रहे हैं सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। मुद्दों की जगह अब जुबानी हमले और निजी आरोप सुर्खियों में आ गए। दुनिया ने युद्ध विराम की खबरों से भले ही राहत की सांस ली हो, लेकिन तमिलनाडु के चुनावी रण में राजनीतिक दलों के बीच जोर आजमाइश जारी है। और विशेष बात है कि राजनीतिक नेताओं के बीच एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले भी जारी हैं। विषबाण एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जनता के उन मुद्दों का क्या होगा जिनको लेकर राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होते हैं। कुछ इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राज्य की 234 सीटों पर मुकाबले के लिए 3600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनावी रैलियों में समर्थकों का जोश दिख रहा है, लेकिन नेताओं की भाषा लगातार तल्ख होती जा रही है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एआईएडीएमके नेता ईपीएस पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने पलानीस्वामी को भाजपा के इशारे पर चलने वाला नेता बताया। पलानीस्वामी ने एआईएडीएमके को बीजेपी के इतने अधीन कर दिया है ताकि वे केवल अपनी सत्ता और स्वार्थ की रक्षा कर सकें। पलानीस्वामी एआईएडीएमके के महासचिव पद पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए दिल्ली के प्रति वफादार बने हुए थे। Personal attacks are inevitable in politics. When the opposition is making, Edappadi has no reasons to attack this government. He has no concrete reasons to attack this government. So he has gone to the extent of attacking personally. Personally means that to false, propagating false allegations against the present chief minister, for which you will have to retaliate. Otherwise, you will have to pay with the same coin. No. वहीं एआईएडीएमके नेता ईपीएस भी पलटवार में पीछे नहीं हैं। उन्होंने स्टालिन पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। डीएमके में कई वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पार्टी और सरकार में पद संभालने की इजाजत केवल करुणानिधि परिवार के सदस्यों को ही है। इस चुनाव में यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। Hide the failure of the Stalin's government because Mr. Stalin's government, the DMK, the Dravida model government has failed miserably in all fronts. Particularly, it has failed to maintain the law and order in Tamil Nadu in the last 5 years. In order to hide this fact, these people are trying, the DMK is trying to set a narrative that as if BJP has not done anything financially to Tamil Nadu, whereas only this BJP government has done a huge, it has allotted a huge welfare scheme. जुबानी जंग में व्यक्तिगत मुकाबले भी तेज हो गए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने ईपीएस पर तीखा हमला बोला तो वहीं टीवी के नेता विजय भी डीएमके और एआईएडीएमके पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। डीएमके और एआईएडीएमके ने हमेशा जनता को धोखा ही दिया है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी प्रचार से दूरी भी चर्चा में है। लोकसभा चुनाव में ब्रदर स्टालिन के साथ मंच साझा करने वाले राहुल गांधी इस बार तमिलनाडु के चुनावी मैदान से लगभग नदारद हैं। पुदुचेरी में राहुल की रैली में स्टालिन नहीं दिखे और तमिलनाडु में स्टालिन की सभाओं से राहुल गायब रहे। सीट शेयरिंग को लेकर मतभेदों की चर्चा भी तेज है और यही वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस चुनाव में सीमित नजर आ रहा है।
ओपिनियन पोल्स में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन टीवीके का वोट शेयर खेल बिगाड़ सकता है। फिलहाल चुनावी जंग में मुद्दों से ज्यादा जुबानी हमले हावी हैं। अब जनता तय करेगी कि किसकी बात पर भरोसा करना है। तो तमिलनाडु की राजनीति इस बार इस महीने में भी दिलचस्प है, क्योंकि वहां पर जो तीसरा कोना है वो एक्टर विजय, उनकी जो टीवीके पार्टी है वो बनाती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जो दो फ्रंट हैं, एक डीएमके के अगुवाई में और दूसरा एआईएडीएमके के अगुवाई में एनडीए, इन दोनों के बीच मुख्य तौर पर मुकाबला है। तो इन्हीं मुकाबलों के बीच क्या ये जुबानी हमले तक बात पहुंच गई है क्या? क्योंकि जो मुद्दे हैं तमिलनाडु के, उस पर कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी डीएमके हैं उस पर सवाल है। उससे सवाल भ्रष्टाचार के हैं, उससे सवाल वहां पर और भी कई मुद्दों को लेकर के है, चाहे सनातन का मुद्दा हो, कार्तिकेय दीपम वाला विवाद, आपने वो खबर जो है वो देखी होगी। लेकिन क्या ये जुबानी हमले तक ये बात पहुंची क्यों? इसी का जायजा लेने के लिए सीधे जमीन पर चलते हैं। हमारे दो सहयोगी, जैसा हम आपको बताते रहे हैं कि हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और हमारे सहयोगी निखिल सिंह, दोनों मौजूद हैं। पहले विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, यहां तक बात क्यों पहुंच गई? जुबानी हमले, और वो भी इतने तीखे तीखे मुद्दों पर क्यों नहीं? क्या कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो मुद्दों को लेकर के घिरती हुई नजर आ रही हैं, इसीलिए ये निजी हमले और जुबानी जंग? लालजी कहते हैं ना कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। तो वो हमने देखा है कि पिछले दिनों से चेन्नई में कि लगातार 40 दिन का जो ईरान और अमेरिका का ये महायुद्ध है, महासंग्राम है, इसके बीच में देखिए गुड इकोनॉमिक्स का तो हमने देखा कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेट्रोल डीजल से लेके और गैस का, एलपीजी गैस के जो सप्लाई चेन है वो कितना मजबूत है कि हमने आज अभी तक पिछले दिनों में किसी पेट्रोल पंप पे कोई लाइन लगते हुए या कहीं पे किसी ढाबे में, किसी होटल में एलपीजी क्राइसिस नहीं देखी। तो मतलब साफ है कि गुड इकोनॉमिक्स के न फ्रंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये एश्योरेंस है कि कहीं कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है, कहीं कोई सप्लाई चेन ब्रेक नहीं किया है, इसका आंखों देखा हाल मैं आपको बता सकता हूँ। रही बात कि ये कोस्टल स्टेट है तमिलनाडु, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर आप देखिए तो यहाँ एक कमाल का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है कोस्टल रीजन में, जहाँ सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब है। लेकिन इसके बावजूद अगर तमिलनाडु का जीडीपी उस मामले में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं करता है तो इसके पीछे वो सियासत ही है। जो हमले आप अभी देख रहे हैं तो ये सीधे आप ईपीएस का जो चार्ज है, एआईएडीएमके ने अपने हर जनसभा में, आज वो चेन्नई में है, 2 मीटिंग उन्होंने की है और हर सभा में यही सवाल पूछते हैं कि अगर स्टालिन के पास कुछ है तो अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं रखते हैं। लेकिन अगर वो ये नहीं रखते हैं और सिर्फ करुणानिधि के नाम पे ये चुनाव चाहते हैं तो क्या ये पूरा डीएमके के कंधे पे बेस पर ये एक परिवार, फैमिली फर्स्ट का 3 जनरेशन से अब सीधे सीधे स्टालिन अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो फिर वो किस दिन तमिलनाडु की जनता को याद करेंगे और जनता की भलाई करेंगे। उस यार यही बात देखिए कि स्टालिन भी कह रहे हैं कि पलानीस्वामी जो है वो पब्लिक स्पीकिंग में, पब्लिक डिस्कोर्स के लायक नहीं है। तो ये व्यक्तिगत हमले का जो भी हो, लेकिन एक अंदाजा तो आप इस बात के लगा सकते हैं इन जगह पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी सरकार के नाम पे लोगों ने एक अलग से उसको एक चीजें दिखा है, एक दिशा दिखा है, एक मुझे लगता है कि नई उम्मीद दिखी है। ये एक बड़ा फैक्टर भी हो सकता है। बिल्कुल, ये फैक्टर हो सकता है। और क्या क्या फैक्टर है निखिल? क्योंकि जिस तरह से जुबानी जंग में नेता उलझ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से उनको परेशानी महसूस हो रही है, इसीलिए जुबानी जंग में उलझना पड़ रहा है उनको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है लालचंद की जनता सवाल पूछ रही है और उसका जवाब अगर देना हो तो जवाब अगर देने में कुछ दिक्कत हो तो कड़वे हो, तीखे हो सवाल, तो अच्छा यह है कि कोई दूसरा सवाल खड़ा कर दिया जाए और उस जवाब से बच लिया जाए। और यही हम अक्सर भारतीय राजनीति में देखते हैं और ये साउथ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, तमिलनाडु की विशेष तौर पर, ये इससे अछूती नहीं दिख रही है, क्योंकि सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। जो गुड इकोनॉमिक्स, बैड इकोनॉमिक्स की बात अभी विनोद मिश्रा जी ने कही है, वो यहाँ भी कही जा रही है कि भाई आप अपने आप को क्लेम करते हैं तमिलनाडु में कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं पिछले यूपीए गवर्नमेंट से अगर तुलना की जाए तो 14 गुना ज्यादा
बजट उनको मिला है यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से, जो सहायता मिली है, और उसके बावजूद अगर आप केवल वहीं तक पहुंचे हैं तो सवाल पूछा जाएगा, सवाल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का पूछा जाएगा, और सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि वंशवाद का भी पूछा जाएगा। इन चीजों से बचने के लिए बेहतर है कि आप इन सवालों का जवाब देने के बजाय दूसरा सवाल दूसरे के ऊपर खड़ा कर दें कि जी वो तो बोल नहीं पाते, उनको यहाँ तक कि उदयनिधि मारन ने बिलो द बेल्ट जाते हुए स्लेव तक कह दिया। तो ये सारी चीजें कहा है, वो जो है चरण पादुका उठाते थे, पैर छूते थे, और बहुत बहुत दूसरी बातें। तो ये सारा जो वर्बल स्पैट एक तरह से कहा जाए, विश्वमन एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो गया। उससे जनता कहीं ना कहीं उसको ये लगने लगा कि भाई हमारे मुद्दों का क्या, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्यों नहीं उन कोर इश्यूज को उठा रहे हैं, आप महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते, आप विकास की बात क्यों नहीं करते, आप जन सरोकारों की बात क्यों नहीं करते। तो ये सवाल उनसे दूरी उनको दूर ले जा रहे हैं, और सवाल के बदले सवाल पूछ लेना शायद राजनीति के लिहाज से ज्यादा मुफीद भी लगता है अगर जनता जवाब मांगे। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि कहीं ना कहीं असुविधा महसूस होती है और जनता के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के जवाब देने में असुविधा होती है, इसीलिए आसान रास्ता चुन लेते हैं नेता, और वो एक दूसरे के ऊपर जुबानी हमले जो है वो करने लगते हैं। फिलहाल निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे तमिलनाडु के राजनीति पर जानकारी लेते रहेंगे, और विनोद जी आप अभी बने रहिएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए भी बड़ा दिन है, उस पर आपसे बात करनी है, आप बने रहिएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी खबरों का भी इस वक्त में हम रुख करेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि ब्रेक से पहले हमने बात की कि जनता के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं नेता असहज महसूस करते हैं क्या, इसलिए जुबानी जंग, इसलिए निजी हमले। तो आइए आपको अब दिखाते हैं कि तमिलनाडु में जनता के मुद्दे क्या हैं और इस चुनाव से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तमिलनाडु में चुनावों की बिसात बिछ चुकी है। नेता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में प्रचार कर रहे हैं, और हर तरफ से जो भी नेता और जो भी राजनीतिक पार्टियां जा रही हैं वो अपनी अपनी बातें कि वो क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ देंगे और कैसे राज्य को आगे ले जाएंगे, इस बात के दावे और वादे वो जनता के बीच में कर रहे हैं। लेकिन जनता किन मुद्दों पर सोचती है, क्या सोचती है तमिलनाडु की जनता, हम इस वक्त चेन्नई के मरीना बीच पर मौजूद हैं और यहाँ जानेंगे कुछ लोगों से कि आखिर उनके अपने मुद्दे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं कि सरकारें सत्ता में आए तो उनके लिए करें। कुछ लोगों से बात करेंगे। सरकारों को सत्ता में आने पर आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? बेसिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में है ना, जैसे यहाँ से एयरपोर्ट जाना है तो कितना टाइम लग रहा है एक्चुअली, तो वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है एक्चुअली कि यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार क्या कर रही है। आपके क्या मुद्दे हैं? विकास चाहिए और हर सुविधा चाहिए, सुविधा थोड़ा कम है, सुविधा कम है। बदलाव भी होना चाहिए और कोई नई सरकार आएगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और कोई नई सरकार को चांस देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे महिला थोड़ी सुरक्षित नहीं है, तो हमको थोड़ा रात को निकलने में थोड़ी तकलीफ भी होती है, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए करके। जैसे किसी ने ज्वेलरी पहन ली तो यहाँ पे हर 7 डेज में ऐसी खबर आती है कि किसी की चेन चले गई, किसी के कान के खींच के लेके गए, तो वो सुविधा हमारे लिए बहुत मायने रखती है। सरकार कोई भी हो, महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। महिला सुरक्षा बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, आपसे बात करते हैं। तो सोचते हैं कि छोटे व्यापारियों के लिए थोड़ा अच्छा करे, इसलिए अच्छी सरकार बने। डीएमके सरकार अच्छा ही किया है, तो डीएमके ने अभी सुविधा भी बहुत अच्छा किया है, तो पहले से भी अभी तो कोई पब्लिक को इतना दिक्कत नहीं है। सरकारों को लेकर के कि कौन आए, इसको लेकर के जरूर लोगों के विचार मिश्रित हैं, लेकिन इस बात सामने आ रही कि सब ये चाहते हैं, जब जो व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि उनके लिए काम हो, और सबसे खास बात है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी कह रही हैं कि महिला सुरक्षा के लिए काम होना चाहिए, और जो भी सरकार आए वो डेवलपमेंट का काम करे, विकास के काम करे और महिला सुरक्षा की बात करे। कैमरामैन सुनील राणा के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, चेन्नई। तो हमारे सहयोगी निखिल सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी कि तमिलनाडु की जनता क्या चाहती है, उनकी क्या उम्मीदें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे
तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति की। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति की और विशेष रूप से भवानीपुर की, जहां पर ममता बनाम शुभेंदु अब औपचारिक तौर पर तय हो गया है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं, तो ममता के खिलाफ वही मैदान में है। लेकिन जो स्ट्रीट फाइटर की इमेज है ममता बनर्जी की, अब वो उसी इमेज के साथ चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में हैं। सीएम ममता इस बार सीधे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोल रही हैं। एसआईआर को लेकर न्यायिक अधिकारियों ने तय सीमा में काम पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं और सीधे चुनाव आयोग पर वोट काटने का आरोप लगा रही हैं। तो बीजेपी पलटवार कर रही है कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमले के अलावा ममता बनर्जी के पास इस बार कोई मुद्दा ही नहीं है। उधर लगातार फटकार के बावजूद ममता बनर्जी एक बार फिर से एसआईआर के विरोध में अदालत का रुख करने की तैयारी में है। 27,16,393 लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। भवानीपुर की मतदाता सूची से ही करीब 44,000 नाम इस बार हटाए गए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा फैलाने और भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के रैना में एक रैली में अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को धमकियां दी। उधर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है और तृणमूल कांग्रेस समेत सभी पार्टियों और नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है, इस बार चुनाव हर हाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ही होंगे। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा 27 लाख नाम 1,20,00,000 में से जोड़े गए हैं, वह भी मेरे केस के कारण। बाकी 58 लाख नाम जोड़े नहीं जा सके, जिनमें से कुछ नाम हटाए जा सकते हैं, जैसे डुप्लीकेट वोटर या मृत वोटर। बाकी जो 27,50,60,000 नाम एजुकेशन में बाकी हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। सीधे इस समय लिए चलते हैं आपको कैबिनेट की प्रेस वार्ता में। कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए हमारे साथ माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। नमस्ते दोस्तों, आज 5 बड़े फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में हुए हैं। ये 5 बड़े फैसले आपके सामने हैं। सबसे पहला हमारे अन्नदाताओं के लिए, किसान भाइयों के लिए खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जिसमें 41,534 करोड़ 41,000 करोड़ रुपए का ये कंप्लीट सब्सिडी का प्रोग्राम है, जो आज किसान भाइयों के लिए खरीफ के लिए तय हुआ है। सेकंड, राजस्थान में जो पचपदरा बालोतरा जिले में रिफाइनरी बन रही है, उससे रिलेटेड कुछ फैसले हुए हैं, जो 79,000 करोड़ रुपीस से रिलेटेड है सारा। तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ, जयपुर में मेट्रो का फेज 2, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। बहुत बड़ा फैसला है ये जयपुर शहर के लिए। चौथे और पांचवे दोनों हमारे नॉर्थ ईस्ट में 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, बड़े पावर प्लांट्स हैं। एक कमला हाइड्रो पावर प्लांट है, ये 1,720 मेगावाट का है, 26,000 करोड़ का है। दूसरा कलई 2, ये 1,200 मेगावाट का है, ये 14,000 करोड़ का है। तो टोटल आज 1,74,000 करोड़ रुपए से अधिक के फैसले आज कैबिनेट में हुए, जो कि मैं आपके सामने एक एक करके डिटेल में लेके आऊंगा। सबसे पहला, खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में 41,534 करोड़ रुपीस का सब्सिडी का पैकेज।
हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड हो चाहे वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो, किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए एक हमेशा एक तरीके से एक सेफ्टी शील्ड बन के खड़े हुए हैं, सेफ्टी शील्ड बन के खड़े हुए हैं। और किसी भी तरह के फर्टिलाइजर में अप्स एंड डाउन्स जो भी आए, कभी उसका प्रभाव हमारे किसानों पे पड़ने नहीं दिया है। अगर हम कोविड के समय से अब तक का एक्सपीरियंस देखें तो फर्टिलाइजर के प्राइस किसी भी कारण से दुनिया में अगर ऊंचे हुए हो, लेकिन उसका प्रभाव भारत पे नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आज का फैसला भी उसी संकल्प का है। जो डीएपी बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, इसका 50 किलो का बैग एकदम फिक्स 1350 रुपये पे लगातार चलाया गया है। इसके लिए सब्सिडी बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों पे कोई बोझ ना आए, ये ध्यान में रख के फैसले लिए गए। आज का जो फैसला है, इससे सब्सिडी का टोटल अमाउंट आएगा 41,534 करोड़, 41,534 करोड़ रुपए का टोटल सब्सिडी का रहेगा खरीफ के लिए। पिछले खरीफ सीजन से करीब 4,317 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सब्सिडी आएगी। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट के लिए जो अमाउंट तय होता है रुपीस पर किलोग्राम, एन, पी, के और एस, ये अमाउंट्स आपके सामने लिखे हैं। एन के लिए 47.32 रुपीस पर किलो, पी के लिए 52.76 रुपीस पर किलो, के पोटेशियम इसके लिए 2.38 रुपीस पर किलो, सल्फर के लिए 3.16। पी फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, राइट? ऐसे ही पास होते थे एग्जाम में भी पूछ के। एडिशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट फार्मर्स में बेसिकली टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, इनके लिए भी सेम प्रोविजंस रखे गए। और मेन है डीएपी, उसके लिए। सेकेंड फैसला, राजस्थान में एक बड़ी रिफाइनरी बन रही है, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। इसमें कुछ फैसले लिए गए, जिसमें जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन रहेगा उससे रिलेटेड और कॉस्ट का जो अपडेट है उससे रिलेटेड। बहुत बड़ी रिफाइनरी बन रही है। जैसा आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिफाइनर ऑलरेडी बन चुका है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 258 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी है। अब इसमें 9 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। कॉमर्शियल ऑपरेशन इस रिफाइनरी का जुलाई 2026 में चालू हो जाएगा। पचपदरा बालोतरा में ये लोकेटेड है। 1 लाख कंस्ट्रक्शन जॉब्स इसके टोटल क्रिएट हुए हैं और जब ऑपरेशनल हो रही है, अभी सारी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, पाइपलाइन भी मुंद्रा से बन गई है, तो करीब 10,000 डायरेक्ट जॉब्स ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस रहेगा और बहुत सारे इनडायरेक्ट जॉब्स रहेंगे। 2 क्रूड इसमें रहेंगे। एक तो क्रूड रहेगा जो राजस्थान में मिलता है, दूसरा जो इम्पोर्टेड क्रूड होगा वो भी यहाँ पर रिफाइन होगा। कुछ पिक्चर्स है इसके रिफाइनरी बनने के टाइम के। बहुत अच्छी रिफाइनरी बनी है, बहुत ही मॉडर्न है। एनर्जी एफिशिएंसी में बहुत इसका नाम है और ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो भी रिफाइनिंग में, लेकिन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज इसने हासिल किया है। जो कॉम्प्लेक्सिटी का इंडेक्स होता है उस पे भी ये इंडिया में 2nd नंबर पे है। नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, उसमें भी 2nd नंबर पे है ये। और उसके कुछ पिक्चर्स हैं बने के। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लांट है। साथ ही साथ इसमें और भी कई चीज़ों के प्रोडक्शन इसमें साथ में होंगे। पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, LLDPE, HDP, बेंजीन, ब्यूटाडीन, सल्फर, LPG भी, ये सब यहाँ पे बनेंगे।
पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी इंडेक्स हाईएस्ट है इसका, 0 लिक्विड एफ्लुएंट डिस्चार्ज है, और नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी यानी कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड को ये रिफाइन कर सकता है, इसको नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स बोलते हैं। उसका 17 है, विच इज़ सेकेंड हाईएस्ट इन इंडिया। भारत की डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ा देगा और अच्छा इससे रेवेन्यू भी, करीब 21,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू केंद्र और राज्य को मिलके आएगा। तीसरा आज का फैसला है जयपुर का फेज 2 मेट्रो। 41 किलोमीटर लंबा एक मेट्रो स्ट्रेच जयपुर का अप्रूव हुआ है। जयपुर बहुत बड़ा शहर बन चुका है, हम सब जानते हैं, करीब करीब 50 लाख की पॉपुलेशन पे पहुंच चुका है, और बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब सेक्टर्स के लिए, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए जयपुर एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान बन चुका है, और दिल्ली से नज़दीकी होने का भी एक लाभ है। प्लस जो बहुत बड़ा इतिहास है जयपुर का, बहुत ही समृद्ध इतिहास है और बहुत ही रिच कल्चर है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जयपुर का फेज़ 1 जो ऑपरेशनल है ऑलरेडी, इसमें ऐड हो रहा है आज फेज़ 2। ये आपको मैप में फेज़ 1, फेज़ 1A, 1B, फिर 1C ये बना पुराना, और 1D अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आज जो ऐड हुआ फेज़ 2, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये वाली लाइन, टोडी मोड़ है ऊपर निंदर की तरफ, और इधर प्रहलादपुरा से लेके ऑल द वे टू टोडी मोड़। ये टोडी मोड़ ये कंप्लीट पूरा खासकर जयपुर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा, और पास में रेलवे स्टेशन है, उसके साथ भी इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ओवरऑल जयपुर का बड़ा एक सेगमेंट, बहुत बड़ा सेगमेंट इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये दोनों के दोनों सेगमेंट्स इससे कनेक्ट होते हैं। 41 किलोमीटर का है, जिसमें 34 तो एलिवेटेड है और 2 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। टोटल 13,038 करोड़ रुपीस का इसमें आउटले है, 13,000 करोड़ रुपए का आउटले है। 5.5 साल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, और डायरेक्ट जो फेज 1 है उसके साथ खासा कोटी में इसका इंटरचेंज होगा। जैसे हमारे राजीव चौक में बड़ा इंटरसेक्शन है, इसी तरह से इसमें खासा कोटी जयपुर का एक सेंट्रल पार्ट है, वहां पर इसका इंटरसेक्शन होगा। ये इसमें डिटेल्स है, और जिस तरह से जयपुर की पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है, 1 करोड़ की तरफ बढ़ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स, उसमें ये बहुत ज़रूरी था कि एक मेट्रो नेटवर्क बढ़ाया जाए। इसकी टोटल कैपेसिटी जिस तरह से आगे आएगी, करीब करीब 30 लाख पैसेंजर्स पर डे की तरफ एट इट्स पीक कवरेज इसमें जाएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट आया 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, पहला है कमला, दूसरा ये आप जरा देखेंगे ढंग से, अगर हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो रिवर बेसिन्स है उसका मैप है, बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी हम ब्रह्मपुत्रा, इसमें जो 2 रिवर बेसिन्स जुड़ते हैं उस पर अभी फोकस करेंगे, लोहित बेसिन और सुबानसिरी बेसिन। ब्रह्मपुत्रा के पूरे ट्रिब्यूटरीज में सुबानसिरी और लोहित 2 बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, जोड़ने वाली नदियां हैं। इसके बेसिन में हम देखेंगे, इसके बेसिन में हम देखें तो सुबानसिरी में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और आज जो अप्रूव हुआ है वो है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुबानसिरी अपर है, सुबानसिरी लोअर है, और कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं। ये मिला के आज कमला में बड़ा प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। ये कमला HP का मैप पे प्रोजेक्ट इसमें दिखाया है, और ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। 26,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होएगा, और 1,720 मेगावाट्स का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है। 96 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। एनुअल आउटपुट आएगा 6.8 बिलियन यूनिट्स, 6.8 बिलियन यूनिट्स इसका एनुअल आउटपुट रहेगा। कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश में जिनको डायरेक्ट इसका प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलेगा, कमले, क्रा दादी, कुरुंग कुमे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन NHPC और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की JV के माध्यम से होगा।
साथ ही साथ फ्लड का भी इसमें मॉडरेशन होगा, बहुत बड़ा कुशन ये प्रोवाइड करेगा फ्लड्स के लिए। अरुणाचल प्रदेश को 12% फ्री पावर मिलेगा, विच इज वैल्यूड एट अबाउट 486 करोड़ रुपीस पर ईयर। ग्रिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में कई किलोमीटर रोड्स और ब्रिजेस बनते हैं, तो आप देखोगे इसमें 196 किलोमीटर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस इस प्रोजेक्ट में बनेंगे। जैसे चिनाब रिवर जब बनी तो उसमें 200 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स बनी, जो कि उस पूरे एरिया के लिए बेनिफिट होता है। करीब 2800 पर्सनल लगातार इसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम में लगेंगे। सेकेंड है कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो आपने अभी देखा था। सुबनसिरी और कलाई सुबनसिरी और लोहित, इन दोनों जो बेसिन्स हैं, इन दोनों में सुबनसिरी में कमला और कलाई है लोहित वाले बेसिन में। अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, और 14,106 करोड़ रुपीस का इसकी कॉस्ट रहेगी। 1,200 मेगावाट्स, बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। 78 मंथ्स में कंप्लीट करने का प्लान है। एनुअल आउटपुट रहेगा 4.8 बिलियन यूनिट्स, 4.8 बिलियन यूनिट्स रहेगा। और THDC और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के JV से ये बनेगा। इसमें भी अरुणाचल प्रदेश को 12% फ्री पावर मिलेगा और 29 किलोमीटर्स की रोड्स, ब्रिजेस और कल्वर्ट्स इसमें बनेंगी इसके प्रोजेक्ट के साथ साथ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये भी। ये देश की जो ग्रीन एनर्जी की जर्नी है, उसमें ये दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। ओवरऑल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में पिछले जून 24 से अब तक 51 रेलवे प्रोजेक्ट्स बड़े सैंक्शन हुए हैं कैबिनेट में, जो कि 1,84,000 करोड़ रुपीस के हैं। हाईवे प्रोजेक्ट्स करीब 30 हुए हैं, जो कि 2,54,000 करोड़ रुपीस के हैं। 11 मेट्रो प्रोजेक्ट्स, जिसमें आज जयपुर का जुड़ा, 1,44,000 मेट्रो प्रोजेक्ट करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स। 5 नए एयरपोर्ट्स और मॉडिफाइड उड़ान स्कीम अप्रूव हुई है 37,000 करोड़ रुपीस के। पोर्ट और शिपिंग में 1,45,000 करोड़ रुपीस के टोटल प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, और रोपवे में 6,800 करोड़ रुपीस। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में आज 2 नए जुड़े, 71,000 करोड़ रुपीस के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल पार्क्स में 62,000 करोड़ रुपीस, और प्रधानमंत्री आवास योजना में 5,36,000 करोड़ रुपीस, और जल जीवन मिशन में 8,70,000 करोड़ रुपए। ओवरऑल 23 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए इन कुछ महीनों में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ऐतिहासिक थर्ड टर्म है। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा। ठीक, फर्स्ट रो से हम लेते हैं। फर्स्ट ये लक्ष्मण सर, लक्ष्मण CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल है, फर्टिलाइज़र के लिए जो NBS सब्सिडी के रेट डिसाइड किए गए हैं, उसमें NPK और S 4 कंपोनेंट हैं, तो पिछले रबी सीजन के मुकाबले सब्सिडी रेट ज़्यादा हैं क्या? ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा हैं? और एक सवाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेके, जो कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वो दरअसल लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटजिक है, तो स्ट्रेटजिक के लिहाज से वो कितना अहम होगा ये हाइड्रो प्रोजेक्ट? प्रकाश नेक्स्ट वांटेड टू आस्क। Sir, Prakash Pedashi from ET Now. My question to you on the fertilizer subsidy. Has the current conflict been taken into account while deciding the NBS fertilizer subsidy? And has there any such hike in the overall amount as compared to last year? शिशिर बैक सर, सेकंड रो। सर नमस्कार, शिशिर हिंदू बिजनेस लाइन से। So my question is about this HPCL refinery. What was the original cost? And when you are talking about the capital infusion, equity infusion by HPCL, is the fresh one or is there the original one, sir? Tvesh, 4 number. Sir, Tvesh from Economic Times. Sir, regarding the Jaipur Metro project, how much of this will be contribution by the Rajasthan government and how much of it will be by the center? And regarding the Rajasthan refinery, sir, was there a pipeline also supposed
to go to Barmer, and is there any update on that as well? Next state number. Hi, sir. This is Shilpa from the Economic Times. I wanted to ask you about the hydro projects. Which states will get the power from these two projects? With whom have the PPAs been signed? And the second question is also, you mentioned about the strategic importance of these projects. So there was a project that was supposed to come in Upper Siang also, which was supposed to be a much higher capacity of 11 gigawatt. Now, considering the strategic importance, what is the status of that project? And yeah, so Upper Siang. 208. सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर मेरे दो सवाल हैं। सर जो एनबीएस खरीफ सीजन के लिए जो सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है, सर पोटाश को लेकर सब में बढ़ोतरी की गई है। पोटाश के जो पिछले साल के प्राइस थे उसी प्राइस में रखा गया, क्या बड़ी वजह रही? और दूसरा सर जो एचपीसीएल रिफाइनरी है, तो जो अभी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री राजस्थान जा रहे हैं, तो क्या उस दिन उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा? और यदि हो जाएगा तो सर कब से हम उसमें से आउटपुट आते हुए देखेंगे? 22 and third line. This is Sandeep Das from Financial Express. This subsidy of 41,534 crore, how much is this increase from the budget estimate of 26-27, and whether this war in the West Asia is taken into account? 24 Deepak. Sir, मैं दीपक टाइम्स ऑफ इंडिया से। सर, my first question is, how much is going to be the estimate increase in the subsidy for this year? Because I think from today itself it is very visible that it might go up, if any estimate from their side. And second, on Jaipur Metro, we see that like Bhopal Metro, go to Lucknow Metro, those are lying on the running vacant. So what is the logic behind putting so much of money in creating a white elephant, which may have get less number of riders? 142. Sir, Rishabh Bhatnagar with NDTV Profit. On the fertilizer subsidy itself, sir, what is the sort of pressure now on the overall subsidy math for the current fiscal year, FY27? Also, what impact will this have on the fiscal deficit target that the government has? 249. So this is it is on. Hello, this is Rima Sharma from Pratham Khabar in News Channel from Assam. So my question is regarding the Lower Subansiri project, which is become very lengthy to complete the project. What is the cost increasement, and what is the project status now? 209 we missed, then we'll take. अभिषेक सिंघल, राजस्थान पत्रिका। सर, जो बालोतरा की रिफाइनरी है, सर इसमें राजस्थान को कितना रेवेन्यू का फायदा होगा? ओवरऑल फिगर तो है, पर अलग से राजस्थान के हिसाब से। 130. Animesh from the Tribune. I have a similar question on Jaipur Metro. The first phase hasn't been a very successful one. The ridership has been very poor. So what expectations do you have for the second phase? At the front, 54, second thought. Hello. Hello, sir. Harsh Kumar from Mint. Sir, after this Jaipur Metro, so what will be the overall size pan-India will be of the metro? I think questions are over. Everybody has asked. Yes, sir. 145. सर 4,317 करोड़ लास्ट खरीफ सीजन से सब्सिडी बढ़ी है, लेकिन सर जो फर्टिलाइज़र की जो दिक्कतें आ रही हैं सर, अभी फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं हो रहा है लोगों को, किसानों को, क्या उस पर भी सर सरकार की कोई निगाह रही है? कैबिनेट में डिसीजन तो उस पर खाली सब्सिडी पे हुआ है, लेकिन क्या इस पर भी कोई बात हुई है, चर्चा हुई है? सब्सिडी तो ठीक है, लेकिन फर्टिलाइज़र किसानों को मिल नहीं पा रहा सर। थैंक यू। सबसे पहले मेट्रो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे आता हूँ।
क्वेश्चंस मेट्रो पे है, फर्टिलाइज़र पे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे है और रिफाइनरी पे है। मेट्रो में आपके दो लोगों की क्वेश्चंस आए ऑक्यूपेंसी से रिलेटेड। हमें मेट्रो को जब हम देखें तो ओवरऑल अर्बन प्लानिंग में देखना चाहिए। ओवरऑल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में मेट्रो शुड बी एग्जामिन्ड। देयर आर कंट्रीज like Japan, like UK, like US, many countries in Europe, which constructed their metros when the cities were very small. Even though the occupancy at that point of time was very low, लेकिन वो जो फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ मेट्रो जब डेवलप की गई तो जैसे जैसे शहर ग्रो करता गया तब भी शहर के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर प्रेशर नहीं आया। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे टोक्यो में करीब 90 साल 80 साल पहले मेट्रो बनी, लंदन में करीब करीब 90-100 साल पहले मेट्रो बनी, न्यूयॉर्क में करीब 80-90 साल पहले मेट्रो बनी। ये जो थॉट प्रोसेस है ये हमें सबको जानना ज़रूरी है कि अर्बन ग्रोथ होनी है, क्योंकि पीपल डू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। उस अर्बन ग्रोथ को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए मेट्रो का नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। और विशेषकर जो हमारे लो इनकम और मिडिल इनकम फैमिलीज़ हैं उनके लिए मेट्रो मस्ट है। उनके लिए मेट्रो मस्ट है। भीड़ भाड़ से दूर होना, पोल्यूशन कम करना और एक अफोर्डेबल प्राइस पे ट्रांसपोर्टेशन कर पाना, उसके लिए मेट्रो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 14 से पहले मात्र 5 शहरों में मेट्रो होती थी, आज करीब 20 शहरों में मेट्रो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल चुके हैं। कहीं पे कमीशन हो गए, कहीं पे कंप्लीट हो गए, कहीं पर और नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और मेट्रो का नेटवर्क लगातार बढ़ते बढ़ते 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ऑलरेडी हमारा नेटवर्क बन चुका है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। जो लोग इसमें एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा और ज़्यादा गहराई से सोचें, देश के बारे में सोचें, केवल अपनी जर्नलिज्म से बाहर निकलें और देश के बारे में सोचें। एडजेक्टिव्स यूज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बारे में गहन चिंतन करना और देश का भविष्य सोचना, भविष्य बनाना कठिन काम होता है। हम लोग उसी काम में लगे। राजस्थान का कंट्रीब्यूशन वो डिटेल में आपके पास है, कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा राजस्थान गवर्नमेंट का, लिख के दे दो। मेट्रो में कितना प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। चलो मैं सेकंड आता हूँ, रिफाइनरी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। रिफाइनरी, अच्छा एक और पॉइंट जो आपने लेंथ पूछी थी ना पाइपलाइन इसकी मेट्रो प्रोजेक्ट की, आपने पूछी थी शायद कितनी लेंथ कितनी हो जाएगी, आपका था क्वेश्चन। 1145 किलोमीटर हो जाएगी, 1145 किलोमीटर्स। जयपुर मेट्रो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा 2085 करोड़ और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का रहेगा, जिसमें लैंड की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, वो रहेगा 3861 करोड़। और राइडरशिप रहेगी, अभी जो राइडरशिप है, आपका कहना था कि ऑक्यूपेंसी नहीं है, ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी है, 65,000 ऑलरेडी, डिस्पाइट द नेटवर्क बीइंग अ वेरी स्मॉल नेटवर्क, 12 किलोमीटर्स होने पर भी 65,000 इसकी राइडरशिप है डेली। बहुत बड़ा हो जाएगा, जब ये फेज़ 2 कंप्लीट होगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी राइडरशिप। जब दिल्ली मेट्रो भी बना था, लोग इनिशियली बहुत इसको क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि दिल्ली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दी दिल्ली मेट्रो। मुझे आज भी ध्यान आता है, मैं पीएमओ में एक जूनियर ऑफिसर था, तब डिप्टी सेक्रेटरी था, तब ये डिस्कशंस जब होते थे तब भी लोग ऐसे ही क्रिटिसाइज़ करते थे। लेकिन आज दिल्ली का अगर हम देखें तो दिल्ली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मेट्रो। तो क्रिटिसिज्म और एडजेक्टिव से पहले प्लीज़ थोड़ा इतिहास को देख लें। हाँ,
रिफाइनरी में सबसे पहला क्वेश्चन कि रेवेन्यू में शेयर कितना रहेगा। राजस्थान को करीब 4,000 करोड़ रुपए प्लस वैट मिलेगा। 4,000 करोड़ प्लस वैट, वैल्यू एडेड टैक्स इसका रहेगा। जो पाइपलाइन मंगला फील्ड टू बालोतरा, आपने कहा था कि बाड़मेर में बननी, तो मंगला फील्ड से बालोतरा की पाइपलाइन रेडी। लिखा हुआ आपने, मंगला फील्ड से बालोतरा तक की पाइपलाइन रेडी है। मंगला फील्ड टू बालोतरा ऑलरेडी है तैयार, और मुंद्रा से बालोतरा 489 किलोमीटर वो भी पाइपलाइन रेडी है। ये दोनों पाइपलाइंस रेडी है। HPCL की कॉस्ट के डिटेल्स आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये, इसके डिटेल्स आपको डिपार्टमेंट से मिलेंगे, क्योंकि इक्विटी में कितना बड़ा, टोटल कॉस्ट कितनी बड़ी, वो सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, राइट। तो डिपार्टमेंट से आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अब मैं आता हूँ फर्टिलाइज़र पे। फर्टिलाइज़र पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। पहली बात तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का इस पे इम्पैक्ट पड़ा ही है, स्वाभाविक है फर्टिलाइजर्स पे, बिकॉज कई स्पेशली पोटाश से रिलेटेड और सल्फर से रिलेटेड बहुत सारे फर्टिलाइज़र के अच्छे बड़े सोर्सेज मिडल ईस्ट में हैं, तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है। उसको ध्यान में लिया गया है जब भी आज का अप्रूवल हुआ है। और जो आपका प्रश्न था फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी, इसके ऊपर फ्रॉम डे वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट तब से क्लियर एक कंप्लीट एक हीट मैप रहता है, एक पूरा डैशबोर्ड रहता है, जिसमें देश के हर ज़िले में फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी किस तरह से है, कितना ऑफ टेक हो रहा है, उसका कंप्लीट माइक्रो मॉनिटरिंग हो रहा है। उसमें रेलवे का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, बिकॉज रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो रेलवे और फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री दोनों मिलकर कंटिन्यूसली इसके ऊपर वॉच रखे हुए थे, और राज्य सरकारों के साथ भी वॉच कांस्टेंट संवाद रहता था, अभी भी रहता है। कहीं पर भी देश में फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया है। तो अगर आप देखेंगे फील्ड में भी, अगर आप पता करेंगे, लोकल न्यूज़पेपर्स ने भी बहुत जगह छापा कि फर्टिलाइज़र बहुतायत में अवेलेबल है। और इसमें जो आने वाला हमारा सीज़न है खरीफ का, इसमें कहीं पर कोई कवरेज की दिक्कत नहीं है, बल्कि कुछ जगह पे जितनी रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे पहले ही लोगों ने खरीदना चालू कर दिया था, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत स्पष्ट तौर पे देश के सामने क्लियर फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी के, प्रोडक्शन के आंकड़े रख दिए थे। आप में से कई लोगों के साथ, कई पेपर्स के साथ, सबके साथ शेयर भी हुए थे, और यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डेली, उसमें भी जानकारी दी गई थी। और अब तो ये दिक्कत आने वाले समय में भी होने की कोई संभावना नहीं है। बजट का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट पे और टोटल अमाउंट पे, वो सब टू अर्ली टू से, एज द ईयर प्रोसीड्स उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड टोटल सब्सिडी अमाउंट इंक्रीज हुआ है 4,317 करोड़ रुपीस से, और जहाँ पर भी इंटरनेशनल प्राइसेस में चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से डिपेंड किया हुआ। पोटैश के इंटरनेशनल प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आया है, कोई इंक्रीज नहीं आया है। और ऑफ कोर्स जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उन सब से प्रॉपर्ली इसमें एस्टिमेट किया जाता है। बजट में रखा गया था 54,000 करोड़ रुपीस का प्रोविजन रखा गया था, बजट में 54,000 करोड़ रुपीस का प्रोविजन रखा गया था। और ये हम सब जानते ही हैं कि फर्टिलाइज़र का
जो अप्रूवल होता है उसके बाद में एक्चुअल ऑफ टेक, बहुत सारी कंडीशंस होती है, उसके बेसिस पे फाइनल उसकी कॉस्ट निकलती है, साल में कितना खर्चा आया उस सब्सिडी पे, वो उस पे डिपेंड करता है। हाइड्रो अगर कहीं किसी को अगर स्टॉक्स चाहिए, स्टॉक एज ऑन टुडे सारे स्टॉक्स हैं अपने पास यहाँ पर। अगर मैक्रो लेवल पे देखें फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी, लास्ट ईयर जो कि नॉर्मल ईयर हम मान सकते हैं, लास्ट ईयर आज के दिन 154 लाख मेट्रिक टन्स था एलएमटी, 154। इस साल 180 लाख मेट्रिक टन्स है एज ऑन टुडे। तो अवेलेबिलिटी का प्रश्न आपने क्यों पूछा मुझे नहीं पता, लेकिन अवेलेबिलिटी पिछले साल से भी ज़्यादा है। 180 लाख मेट्रिक टन ऑलरेडी अवेलेबल है। यूरिया का 63 लाख मेट्रिक टन अवेलेबल है। डीएपी का 22, जो कि कंपेयर टू लास्ट ईयर 12 था, उससे 12 के कंपैरिजन में 22 है। एनपीके 56 है कंपेयर टू 39 ऑफ लास्ट ईयर। एमओपी 12 है, एसएसपी 25 है। ओवरऑल 180 लाख मेट्रिक टन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन। लास्ट ईयर 154 लाख मेट्रिक टन था आज के दिन। नॉर्थ ईस्ट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे आता हूँ मैं, लास्ट पोर्शन। हाँ, लोकेशन स्ट्रैटेजिक है और उसका बहुत इम्पोर्टेंट बेनिफिट मिलेगा देश को। किन किन स्टेट से पीपीए, वो आपको डिपार्टमेंट सारी डिटेलिंग इन दोनों प्रोजेक्ट्स के दे देगा। लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट तो आज के विषय में नहीं था। पीपीए का डेटा भी है यहाँ पर। कमला एचईपी का, कमला प्रोजेक्ट का पुदुचेरी, गुजरात, त्रिपुरा 3 स्टेट्स के साथ पीपीए, और अरुणाचल को फ्री में भी मिलेगा, प्लस वो सेल भी कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट का कल ही ना, कमला एंड लोहित, कलई, सॉरी कलई 2, लोहित दिमाग में आ रहा था। वो भूपेंद्र का एक गाना भी तो है ना, लोहित नदी पे। कलई 2 में यूपी, बिहार, इंडियन रेलवे 400 मेगावाट लेगा, और त्रिपुरा एज पर दी अलॉटमेंट, प्लस अरुणाचल प्रदेश को भी उसका पीपीए साइन ऑलरेडी हो चुका है। ये सारे आज के क्वेश्चंस थे। आज घेवर है जयपुर का। सीधा प्रसारण आप कैबिनेट की प्रेस वार्ता का देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों के बारे में जानकारी दी। 5 बड़े फैसले लिए गए हैं और सवालों के भी जवाब दिए। 5 बड़े फैसले मैं जल्दी से बता देता हूं। खरीफ फसलों के लिए 41,534 करोड़ रुपए की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, यानी जो अलग अलग तरह के रासायनिक खाद होते हैं वो। राजस्थान में एचपीसीएल की रिफाइनरी की परियोजना को मंजूरी। साथ में जयपुर में मेट्रो फेज 2 के लिए 41 किलोमीटर लंबा और 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी। और पूर्वोत्तर में 2 प्रमुख हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर,